بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وائس آف قراقرم سے فدا حسین آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ قراقرم کا جب ذکر آتا ہے تو قراقرم کی باسی کس قدر محنت کشی کرتے ہیں، اپنی مٹی کو سونا بنانے کی کس قدر کوشش کرتے ہیں، یہ ساری دنیا جانتی ہے۔ لیکن قراقرم کی ان باسیوں میں، قراقرم کی ان بستیوں میں بسے ہوئے لوگ، خصوصاً پاکستان اور انڈیا کے بیچ بلتستان کے وادی، خصوصاً ضلع گانچھے کے میں بسے ہوئے لوگ افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر افواج پاکستان کی خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ اس طرح کے آپ کو درجنوں لوگ ملیں گے جنہوں نے اپنی عمر کا، اپنی جوانی کا ایک بڑا حصہ پاک فوج کی خدمت میں صرف کی ہے اپنی زندگی کا۔ انہی شخصیت میں سے ایک شخص اخون محمد رضی ہمارے ساتھ موجود ہیں، مچلو۔ انہوں نے پاک فوج کی بہت خدمت کی، 6 مہینے 18 دن، بقول ان کے کہ 6 مہینہ 18 دن۔ تو ہم ان سے گفتگو یارمالا 1 یارمالا 2 یارمالا 3۔ تو السلام علیکم اخون محمد رضی صاحب، وعلیکم السلام۔ بہت بہت شکریہ آپ کے وعلیکم وقت کا۔ السلام۔ بتائیے کہ آپ کس سنے میں تھے، کتنا عرصہ رہا؟ 25 سال ہوئے ہیں فوج تھوڑے، 25 سال ہوئے۔ 6 مہینہ 18 دن ہم نے بوش اٹھایا ہے۔ ارگیوم، شاہین پوسٹ، بایم پوسٹ، یارمالا 1 یارمالا 3، 6 مہینہ 18 دن۔ وجہ یہ ہے اسکت پو کوس پٹھان اسکت پو کوچ نے کرنل نے نہیں چھوڑایا ہے۔ ایس ایس جی کے ساتھ بوش اٹھایا ارگیوم میں، ارگیوم سے لے کر کیم 1، ارگیوم سنگ کیم 1، کیم 1 کیم 2، کیم 3۔ لگاتار رات کو بھی ہم نے بوش اٹھایا، 3 مہینہ 7 دن ہم نے رات کو 1 مہینہ دن کو بوش اٹھایا ہے۔ 1 مہینے کے بعد وہاں سے گولہ باری آئے ہیں، رات کو ہم نے بوش اٹھایا ہے۔ کمال کمپنی کے ساتھ زیادہ طور ہم نے بوش اٹھایا۔ پہلے کمال کمپنی آیا، ساتھ گیا ہے ہم جبری نمبردار علی محمد، اچھا کہہ رہے چیئرمین بشیر، پولیس کھتوں سنگایاں 30 چولنگ نے 3 آدمی جبری بوش کے لیے ساچن میں بھیجا ہے۔ وجہ یہ ہے زمسم پول نہیں تھا، گراڈی تھا، گراڈی پر ہم رات کو نکال کر گیا ہے، سقپا میں بیٹھ گیا، سقپا سے صبح اٹھ گیا ہے، چائے پیا ہے۔ ارگیوم کیم 1، ارگیوم کیم 1 سے 3 پوسٹ ہے، شاہین پوسٹ پو، بایم پوسٹ پو، یارمالا 1 2 مہینے بعد راکھی کر کے بعد میں نکالا ہے۔ یارمالا 1 سے کیم 1 سے یارمالا کیم 1 6-7 گھنٹہ کا راستہ ہے، حد سے باہر زیادہ ہے۔ اچھا کہہ رہے نا ہر جوان کے لیے پکٹ یارمالا 1 کے نا 10 دن 8 دن وہاں بیٹھ کے بیمار ہو کر اتار کے لایا ہے۔ یارمالا 1 کا 18 دن پھر رات دن بوش اٹھایا یارمالا 1 کا۔ شاہین پوسٹ پہ کا خود کھیت بین پر رات کو سب سے پہلے میں ادھر کمال کمپنی کے ساتھ گیا ہے۔ ارگیوم شاہین پوسٹ پہ کا لقل سپاہی پہلے شہید ہو گیا ہے، لاش ہم نے اتار کر لایا ہے۔ NLI کا ایک کیپٹن زخم ہو کر لے گیا ہے، 1 NLI 1 SSG اٹیچ تھا۔ کیپٹن کا کیا نام تھا؟ کیپٹن بچہ نبیل در تھا، 1 NLI 1 SSG کے ساتھ SSG اچھا کھڑا کر کے ہر جگہ پر سیلنگ کرتے ہیں۔ 1 NLI کا 6 جوان اچھا جن گپ ڈاک کھیر بالا ہوئیت پن پا راکھیلا۔ ہم رات کو بھی بوش اٹھائے، دن کو بھی بوش اٹھائے، کیم 1 سے کیم 2، کیم 4، کیم 3۔ اچھا کھیلنا رات دن 12 ہم نے رات کو بوش اٹھایا۔ اچھا بائیں پوسٹ پر میں 3 دن وہاں پہ بوش سنبھالا ہے، 6 نفری میں ساتھ 3 دن کے بعد اتار کر کیم 1 لایا ہے۔ آپ نے اتارا؟ ہاں ہم نے جوان کے ساتھ ہیلپ کر کے ہم نے اتارا ہے نا، اور کس نے اتارا ہے؟ میں ادھر صرف ارگیوم میں بیٹھا یا گیاری میں، گیا میں؟ خالی ارگیوم یارمالا 1 کا 18 دن خود کے سپن، خالی ارگیوم کیم 1 سے کیم 2، کیم 3، کیم 4۔ اچھا 6 مہینہ 18 دن
nga khurs ke spin अच्छा खेले ना वजन और भला हर थोड़ी ठीक मत खाली गांव पर बैठना बर्फ पर बैठना उठना अब गुने खून सूख गया है पर का जाकत पर का जामे उस वक़्त है एटीट्यूड को वर्दी भी नहीं था मुश्किल किस किस्म की मुश्किल आए हैं? मुश्किल तो हद से बाहर वो वजन आया है ऐसे जी कमल कंपनी अल्फा कंपनी आयुब कंपनी हमजा कंपनी 7 यूनिट आया है 3 यूनिट को मुझे पता नहीं कमल कंपनी आयुब कंपनी हमजा कंपनी अल्फा कंपनी ऐसे जी 7 यूनिट पेशावर चराट से आया है चराट पेशावर चराट से आया है 7 यूनिट आया है ऐसे जी अच्छा कह रहे ना यूनिट सुनपो मुझे भूल गया है अच्छा 7 यूनिट आया है ऐसे जी चराट से पेशावर चराट से कैप्टन नबील मेजर एहतेशाम अकबर बोलोस यारमाला वन जुगल फिंग बाद में राखी बेसे दो जहाँ गयुं गोला रंग ahana on samal men mana gayung yarmala wan do mini pois po juk lo fin gayung 10 pois था शाहीन पोस्ट पो अच्छा शाहीन पोस्ट पो 70 अच्छा करे नबाइन पोस्ट पो 3 पोस्ट था हद से बाहर के वजन न फिन अच्छा गयुं में खुर्स के स्पिन 6 महीना 18 दिन खाली ग्लेशियर पर उठना ग्लेशियर पर बैठना अच्छा गुने खून सूख गया है वो तो 6 महीने आप लगातार बैठे ना लगातार। वैसे आपने सियाचिन में कितने साल काम किया? 6 महीना 18 दिन हमने बोझ उठाया है ना हम जाते हैं छुट्टी करने बोलने से अकबर शो ने बोला है अकबर बोलो शो ने बोला है मैं मर जाएगा तुम भी मर जाएगा मैं बचेगा तुम भी बचेगा छोड़ना नहीं है हम जबरी बोझ उठाया है हर साल जाता था या सिर्फ एक साल? एक साल में 6 महीना 18 दिन हमने बोझ उठाया अच्छा नहीं छोड़े बाकी लोग वजह यह है पश्तो आने से सब पेशेवर चला था यूनिट 7 यूनिट पर तमाम गामा पठान कमाल कंपनी हमजा कंपनी आयुब कंपनी अल्फा कंपनी 7 यूनिट आया है 3 यूनिट को मुझे पता नहीं है तो उन कंपनियों ने आपको कुछ इनाम दिए? इनाम किधर देता है तनख्वाह 65 रुपये डेली 65 रुपये तनख्वाह रोटी खाना पीना आज़ाद था उनकी वर्दी जूते कोई कोट जैकेट कुछ इस तरह की कुछ सामान मिला आपको? है किधर सामान मिले सामान या वहाँ बैठने से परका जैकेट न परका जामे स्लीपिंग बैग ठेकेदार का सफ़ेद वाला स्लीपिंग बैग आने वक्त उधर क्लोज करके है सामान किधर दिया है अब जैसे गुने में दर्द हो नाराज नहीं होते जनाब बेरगत अच्छा क्या रहना ने थोप ना रहे बाकी लोगों को किधर 7 दिन 8 दिन कान से खून आता है नाक से खून बग जाता है हेड बराबर नोमा यार मलावानी का 18 दिन खुर्स के स्पिन हद से बाहर बुलंदी स्पिन जहाँ पोस्ट कौन पत्ते संग शाहीन पोस्ट आयुब पोस्ट बेस पत्ते संग यार मलावन बहुत सर्दी स्पिन है इस वक्त आपने हम ये पूछना चाह रहे थे कि आप हर साल जाते थे? नहीं खाली एक साल गया एक साल दोबारा नहीं किया? नहीं दोबारा नहीं गया खाली एक साल में बाकी जाकर 10 दिन बैठते 5 दिन सो बहाना करके बीमार करके वापस आते रहे मैं शो ने नहीं छोड़ा है अकबर बोलोस मेजर रहते शाम अच्छा कौन दोस्त वाला मेजरी तत्पिन साथ था कौन दोस्त साला हजाली जरखन एक बंदा शो राखी शो के साथ में रात को 2 बजे भी जाता था राखी के लिए अकबर बोलोस के साथ शो के साथ 3 को भी जाता था रात को अच्छा 6 घंटे में पोस्ट पर पहुंचते हैं यार मलावानी का 8 घंटे में पहुंचते हैं हम शाहीन पोस्ट पर दौड़ कर जाते था लाश लाने के लिए 3 घंटे 2.5 घंटे में हम क्रॉस करके ले जाते हैं खाली शाहीन पोस्ट पे में 3 दिन 6 लाश संभाल के बैठा है आपने इतनी मुशक्क़त की इतनी तकलीफें की इस वक्त आप क्या चाहते हैं कि फ़ौज वाले आपकी किस किस्म की मदद करें माली मदद करें इलाज के लिए मदद करें? तो जनाब बेरगत का मर्जी कुछ गुने के लिए इलाज किया तो पैसे से बगैर कुछ नहीं होते तो पैसों के बगैर भी होता है मसलन अगर आर्मी वाले आपको CMH स्कर्दू में उठा के मुफ्त में इलाज करें AMH मेहरबानी है पैसे से क्या करेगा गुने में दर्द इलाज और तो फिर पैसे से क्या करेगा
ہاں۔ पिछले साल हम दवाई के लिए गए सर्विस अस्पताल में 3 लाख ऑपरेशन करने के लिए 3 लाख एमआरआई है। हम गरीब आदमी है, इतना हमारे पैसा नहीं। 3 लाख ऑपरेशन वाला डॉक्टर ने दिया था। कहाँ पर? सर्विस अस्पताल लाहौर। लाहौर में? हाँ, लाहौर अच्छा। में पिछले साल हाँ। 3 लाख एमआरआई ला पैसा लगता है जमाना। देखो जनाब, हम इतना पैसा वाले नहीं हैं, हम गरीब आदमी हैं। अच्छा 15-20-30 हज़ार को ऑपरेशन जबानो गुंजाइश नहीं होता, बच्चे जबान गुंजाइश हमारे भी पास इतना पैसा नहीं है। आपका बाल बच्चा पालने के लिए मैं जिम्मेदार नहीं है। 3 लाख में किधर से लाएंगे? गुने में दर थे। थोड़ा से कुछ ज़मीन काश नहीं कर सकते हैं। अगर नाराज़गी नहीं हो तो बिरगत फंड से थोड़ा सा राशन भी मिलना चाहिए। नाराज़ ना हो तो। नाजरीन, आपने गुफ्तगू सुनी अखुन मोहम्मद तरुज़ी की, जिनका ताल्लुक़ मजलू से है। इस वक्त ये सलीम में रिहाइश पजीर हैं, सलीम के ज़िला गांचे के गाँव सलीम है। इस किस्म के लोग आपको जा बजा मिलेंगे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बेशतर हिस्सा पाक फ़ौज की खदमत की है। सारी दुनिया जानती है कि सियाचिन में जो अफवाज जो ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, इस ड्यूरेशन में उन्हें अलाउंसेस ज़्यादा मिलते हैं, तनख्वाह ज़्यादा मिलते हैं, मराद ज़्यादा मिलते हैं। तो इस किस्म के मराद का मुतकाज़ी यहाँ के वो लोग भी हैं जिन्होंने अफवाज पाकिस्तान के साथ बिला शर्त शुरू यानी फ़ौज में भर्ती हुए बग़ैर उनकी खदमत अंजाम दी है। अब ऐसे लोग जिनकी उम्र तकरीबन 80 से ऊपर इनकी उम्र हो चुकी है, ऐसे लोगों की मदद करें। अफवाज पाकिस्तान के अच्छे अच्छे हॉस्पिटल CMH और MH, उसका नाम दुनिया में काफ़ी हद तक इसकी रिपोर्टेशन, इसकी शोहरत है। तो अगर ऐसे लोगों का इलाज वहाँ पे हो जाए, उनको बिला मुआवजा इलाज किया जाए। हम जानते हैं कि जो लिटिल करीम फेमस क्लाइंबर जो है, उनका इलाज MH में हुआ तो उनकी उसकी फ्री में इलाज क्या हुआ क्या कि जो MH के अफवाज पाकिस्तान का नाम दुनिया में बेहतरीन अल्फाज में पुकारा जाने लगा, बेहतरीन अल्फाज में लोगों ने याद किया, यहाँ के गाँव के लोगों ने खुसूसन बहुत तारीफ़ की। अगर इस किस्म की ऐसे लोगों की भी मदद की जाए, मदद उस सूरत में शायद इनके घर में रोटी तो हो लेकिन इलाज के लिए पैसा नहीं होता है, तो इलाज नहीं करा सकते हैं। चूँकि जब बीमार हो तो इंसान मजदूरी नहीं कर सकता है। तो अगर ऐसे लोगों का इलाज हो जाए तो मुकामी लोगों की नज़रों में अफवाज पाकिस्तान की कदर और बढ़ जाएगी, कदर में इजाफ़ा हो जाएगा। तो हम इस उम्मीद के साथ यहाँ पर गुफ्तगू का इख्तिताम करते हैं कि अफवाज पाकिस्तान, ISPR 323 ब्रिगेड इनकी हालत ज़ार पर ज़रूर गौर करेंगे ताकि ऐसे लोगों की हौसला अफजाई हो, ताकि मज़ीद लोगों जो आने वाली नस्लें हैं उनको फ़ौज की खदमत करने का उनमें जज्बा पैदा हो। मुझे फ़िदा हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।